Welcome to Language Learning by Immersion. Students, my name is Mohinder Goswami and today I have decided to discuss with you a very important and crucial topic of English language, without which we will not able to write a single sentence, and it is makes a sentence meaningful. Students, the topic which we are going to discuss today is punctuation and its importance. Why punctuation is so much important while writing English language. And you know its importance very well that without this the topic is incomplete. So let's discuss the punctuation. Punctuation, the word is derived from Latin word punctum, which means right use of putting in points or stops. पंचुएशन जो है एक लैटिन वर्ड पंक्टम से लिया गया है, जिसका मतलब होता है सही जगह पर पॉइंट्स और स्टॉप्स को लगाना। क्योंकि इसके बिना अगर आप कोई सेंटेंस लिखोगे तो वो बहुत ही अलग दिखेगा। इसके लिए हम एक यहाँ पे एक एग्जांपल आपके साथ डिस्कस करेंगे, जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि इम्पोर्टेंस पंचुएशन की कितनी होती है। तो देखिए, लेट अस लुक एट दिस एग्जांपल। द डॉग सेड द मास्टर गॉड्स आर हाउस, and the first example is without punctuation marks. And now look at the second example. The dog said the master guards our house, but thus in the second example if you see, the dog said the master guards our house. तो आप दोनों एग्जाम्पल को देखें, पहली एग्जाम्पल विदाउट पंचुएशन मार्क्स और सेकंड पंचुएशन। फर्स्ट वाली जो है उसमें डॉग जो कहता है कि मास्टर गार्ड करता है उसको, सेकंड में मास्टर कहता है कि डॉग जो है घर को गार्ड करता है। तो सी द डिफरेंस पंचुएशन मार्क्स। नो लेट्स बिगिन विद द डेफिनेशन. What will be the definition? The right use of putting in points or stops in writing is called punctuation. इसका मतलब है कि सही जगह पर पॉइंट्स और स्टॉप्स, सिर्फ पॉइंट्स और स्टॉप्स ही नहीं बल्कि हम डिफरेंट पंचुएशन मार्क्स के बारे में पढ़ेंगे कि वो कहाँ, किस जगह और कब और कैसे यूज़ करने हैं। क्योंकि आप इन चीज़ को अच्छे से समझ लें, क्योंकि इसके बिना जब हम कोई कुछ लिखते हैं तो वो बहुत ही अलग और बहुत ही गलत दिखता है, और हमारे मार्क्स में भी प्रॉब्लम बनती है और इंग्लिश को सीखने में भी। नाउ before starting, let's discuss the different punctuation marks. What are the different punctuation marks in English language? So starting with the one that is capital letters, then we have a full stop, we have a question mark, we have exclamatory mark, we have a comma, we have a apostrophe, we have dash, we have quotation mark, we have underlining, we have parenthesis, we have another one colon, and then there is another one semicolon, and we have also hyphen. Along with this we have ellipsis, and then the last but not the least is slash. So these are the different punctuation marks which we will discuss one by one and understand how these punctuation marks works in English language, and where to use and when to use the right punctuation mark. That matters a lot. And you know, while writing something, these marks matters a lot. Okay, without these marks you even not imagine that how a sentence will possible, and it looks different as we have seen in the initial example. जैसे कि हमने पहले एग्जाम्पल में देखा था डॉग्स वाली में कि पंचुएशन मार्क्स और विदाउट पंचुएशन मार्क्स टोटली अ मीनिंग इज़ डिफरेंट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कैपिटल लेटर्स की। तो कैपिटल लेटर, वी यूज़ कैपिटल लेटर्स टू स्टार्ट द नेम्स ऑफ पर्टिकुलर। तो हम कुछ पर्टिकुलर चीज़ें हैं जिनके नेम को सब स्टार्ट करते हैं तो हम पंचुएशन मार्क्स का, कैपिटल लेटर का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले नेम्स, किसी भी इंसान का नाम हो, जैसे राम, मोहित, टॉमी, चाहे डॉग है, किसी का भी नाम हो तो पहला लेटर हमने बड़ा लिखना है। प्लेसेस, बटोर, पत्नीटॉप, तो उनका भी पहला लेटर बड़ा लिखना है। डेज ऑफ वीक, इनका भी जैसे मंडे, ट्यूसडे, पहला लेटर बड़ा लिखना है। डेज ऑफ मंथ, जनवरी,
फरवरी, तो इनका भी पहला लेटर बड़ा लिखना है। स्पेशल डेज, होली, ईद, इनका भी पहला नेम बड़ा लिखना है। लैंग्वेज जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, जब भी लिखनी है कहीं पे भी तो उसका फर्स्ट लेटर शुड बी द capital one. Now also understand one thing more important, that is see some few more examples incidents which definitely helps you. तो यहाँ पे देखिए, अगर आप कि हिंदू, मुस्लिम, इंडिया, रशिया, गीता, बाइबल, कुरान, तो जब हम बात करते हैं कि हिंदू और मुस्लिम, तो हिंदू और मुस्लिम एक रिलीजन है, तो जब भी किसी रिलीजन की बात होगी तो पहला लेटर बड़ा होना चाहिए। जैसे नेशंस, कंट्रीज़, इंडिया, रशिया, पाकिस्तान, अमेरिका, तो इनका भी पहला लेटर हमेशा बड़ा लिखना है। बुक्स, गीता, बाइबल, कुरान, पहला लेटर बड़ा लिखना है। फिल्म्स जैसे गोलमाल, नो एंट्री, इनके पहले लेटर बड़े। टाइटल्स जैसे एक्सलेंट फादर, मिरेकल्स, कोई भी बुक का टाइटल लिखना हो तो उसका पहला लेटर बड़ा। और बिगिनिंग ऑफ एवरी सेंटेंस, कोई भी सेंटेंस शुरू करने से पहले आपको पहला लेटर उसका बड़ा ही होना चाहिए। नाउ रिमेंबर वन थिंग दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, कम टू द नोट, नो कैपिटल लेटर्स विद सीजन ऑफ ईयर। तो बेटा ये ध्यान रखना है कि जब हम डेज ऑफ वीक्स, मंथ्स के साथ हर किसी के साथ पहला लेटर बड़ा लिखते हैं, और जब हम बात करते हैं सीजन ऑफ द ईयर जैसे कि स्प्रिंग, समर, ऑटम, विंटर, तो इनका लेटर हमेशा छोटा लिखा जाता है। लेकिन ये चीज़ याद रखनी है आपने, कभी टाइटल के आप में ये आ जाए तो तब उस टाइम पे आपको बड़ा लिखना है, अदरवाइज़ ये हमेशा आप छोटा ही लिखेंगे, कैपिटल्स में नहीं लिखेंगे। नाउ कम टू द अनदर पंक्चुएशन मार्क, दैट इज़ फुल स्टॉप। तो एज फार एज दिस वर्ड फुल स्टॉप इज़ कंसर्न, तो इट मीन्स यू हैव टू स्टे फॉर लॉन्ग टाइम। तो पुट द फुल स्टॉप एट द end of every statement, declarative sentence. For example, he was going to market when I met him yesterday. He gave me a big car. तो जब भी कोई सेंटेंस डिक्लेरेटिव रूप में हो और वो आप उसको लिख रहे हो, कोई भी स्टेटमेंट दे रहे हो, तो उसके एंड में आपको फुल स्टॉप लगाना ही लगाना है। और फुल स्टॉप का सिंपल मीनिंग होता है कि आपको यहाँ पे काफ़ी देर तक रुकना है। यू हैव टू स्टे फॉर अ लॉन्ग टाइम, नॉट फॉर अ सम टाइम, विच इज़ टोटली डिफरेंट फ्रॉम कामा। So you need to understand this, that the every sentence ends with full stop depending upon the sense of the sentence. Now come to the another punctuation marks, but before doing that, come to the note. The full stop is not generally used if the abbreviation ends with the same letter as the full word. देखो हमने ये पढ़ा था कि एब्रीवेशंस के आगे भी फुल स्टॉप लगाया जाता है, लेकिन एक चीज़ यहाँ ध्यान रखनी है आपने कि फुल स्टॉप अक्सर ऐसी एब्रीवेशन के साथ नहीं लगाते हैं जिनका पहला लेटर और लास्ट लेटर जो है सेम हो। जैसे डॉक्टर में डी और आर, जब इसकी शॉर्ट फॉर्म बनाई गई तो डी आर बना, तो इसमें फुल स्टॉप नहीं आएगा। मिस्टर में एम आर है, फुल स्टॉप नहीं आएगा। लेकिन अगर हम बात करें बट इन केस ऑफ, जैसे कि हम यहाँ पे एक और फुल फॉर्म ले रहे हैं, एब्रीवेशंस ले रहे हैं, मास्टर ऑफ एजुकेशन, तो आप देखेंगे इसमें मास्टर का एम और एजुकेशन का एन, लास्ट स्टार्टिंग वर्ड एम है और एंड वर्ड एन है, तो नॉट द सेम एज इन केस ऑफ डॉक्टर। जैसे डॉक्टर में दोनों सेम थे, यहाँ सेम नहीं है। जब सेम नहीं होंगे तो तब आपको फुल स्टॉप लगाना है, अगर सेम हो तो फिर आप उस टाइम पे फुल स्टॉप जो है नहीं लगाएंगे। नाउ कम टू द अनदर पंक्चुएशन मार्क, दैट इज़ क्वेश्चन मार्क। तो यू नो क्वेश्चन मार्क इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पंक्चुएशन मार्क। Put a question mark at the end of every sentence that asks a question. जो भी सेंटेंस आपको लगे कि इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो उसमें आपको ये लगाना ही लगाना है। और ये हमें पता कैसे चलेगा? वी विल एबल टू नो हाउ क्वेश्चन मार्क विल बी देयर एंड व्हाई इट इज शुड बी देयर। तो यहाँ पे आप ध्यान देंगे, जैसे लिखा है हमने व्हाई इज शी ड्राइविंग द कार, तो व्हाई इज़ अ क्वेश्चन वर्ड, व्हेन इज़ अ क्वेश्चन वर्ड, हुज इज़ अ क्वेश्चन वर्ड। तो व्हाई इज शी ड्राइविंग द कार, व्हेन आर दे कमिंग, हुज पेन इज दिस। जो अंडरलाइन वर्ड है ये क्वेश्चन वर्ड अलॉन्ग विद हेल्पिंग वर्ब्स। अगर हेल्पिंग वर्ब किसी सेंटेंस में पहले आ जाता है तो सेंटेंस ऑटोमेटिकली क्वेश्चन वाला बन जाता है, इंटेरोगेटिव बन जाता है, ऊपर से उसमें क्वेश्चन वर्ड भी लगा हो तो इट मीन्स यू हैव टू पुट क्वेश्चन मार्क। इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है लिखते वक्त कि आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं या सिंपल डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट दे रहे हैं। तो अगर आप क्वेश्चन वर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं या हेल्पिंग वर्ब को पहले लेके सेंटेंस बना रहे हैं तो एट दैट टाइम उसमें इंटेरोगेटिव सेंस आ जाती है, जिसलिए क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत ज़रूरी है।
नाउ कम टू अनदर पंचुएशन मार्क, दैट इज़ एक्सक्लेमेटरी मार्क। तो एक्सक्लेमेटरी आप इसके बारे में जानते हैं, ऐसे सेंटेंस हैं जिनमें अचानक से खुशी, अचानक से गम, अचानक से गुस्सा, अचानक से फीलिंग शो हो तो वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं। जैसे पुट एन एक्सक्लेमेटरी मार्क आफ्टर अ वर्ड और अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। वर्ड भी हो सकता है, ग्रुप ऑफ वर्ड भी हो सकते हैं, विच शो स्ट्रॉन्ग फीलिंग, जिनमें स्ट्रॉन्ग फीलिंग आती है, दैट समवन इज़ एंग्री, सरप्राइज्ड, फ्राइटेंड और हैप्पी। जब ये चीज़ आती है कोई स्ट्रॉन्ग फीलिंग, तो उस टाइम पे आपने इस मार्क यानी कि एक्सक्लेमेटरी मार्क को यूज़ करना है। Now we will discuss some of the examples which clearly shows how the exclamatory marks are there. सबसे पहले हम बात करें, how wonderful, what a beautiful sight, John stop doing that, get out, I don't want to see you, may God bless you. So you can see in all these sentences there are strong feeling, just like how wonderful, what a beautiful sight, John stop doing that, get out, I don't want to see you. तो जो underlined words हैं यहाँ पे exclamatory marks का यूज़ किया गया है, क्योंकि इन सभी sentences में you will see the strong feeling, whether it is of happiness or whether it is of surprise are there. Now come to the another topic, comma. तो as far as this comma word is concerned, तो I have also told you that full stop mean to stay for a long time and comma mean you have to stay here for short span of time. Use comma only where you feel a pause is needed. जहाँ आपको लगता हो कि पास की ज़रूरत है तो comma लगाना वहाँ ज़रूरी है। सिंपल सा इसका फंडा है। जैसे हम बात करते हैं yes I know him, तो यहाँ yes जब मैंने बोला तो मुझे थोड़ी देर यहाँ पे रुकना है। No, he doesn't like me. Of course, he helps everybody, but he doesn't help me. So you can see the underlined words where I have stopped for some time while speaking, while writing. So that means while stopping or while pausing for some time, you need to put here comma. तो अब हम बात करते हैं कि कामा के और कुछ रूल्स की। तो नाउ कम टू द सेकंड रूल। व्हाट द सेकंड रूल सेज? सेकंड रूल सेज वी यूज कामा to separate. What to separate? To separate the parts of a list. We have a long list. Suppose we have a long list and we have to separate each part. So while separating each part, we need to put comma. Just look at this example. I bought a pen, pencil, eraser and notebook for you yesterday. तो इस एग्जाम्पल को अगर हम देखें, पेन, पेंसिल, इरेजर आर डिफरेंट थिंग्स, तीनों अलग चीज़ें हैं और हमने इनमें कामा यूज़ किया हुआ है। और नोटबुक, और ये चीज़ ध्यान रखना कि जो लास्ट वाली आइटम होती है उससे पहले आपको कामा नहीं एंड लगाना होता है। अगर जितनी मर्जी लिस्ट हो उसमें लास्ट जब चीज़ आ जाती है उससे पहले आपको एंड लगाना है। सेम केस विद द सेकंड एग्जाम्पल। नाउ कम टू another rule of comma. So we use comma with the question tags. तो क्वेश्चन टैग्स हो सकता है आपके लिए न्यू हो, ये ऑलरेडी आपने प्रीवियस क्लास 8th में भी पढ़े थे। क्वेश्चन टैग मीन्स शॉर्ट क्वेश्चंस विच यूजुअली आस्क्ड एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। फॉर एग्जांपल, ही इज़ गोइंग इजंट ही, ये जो इजंट ही है दिस इज क्वेश्चन मार्क, ये क्वेश्चन टैग है। और यहाँ देखो क्वेश्चन मार्क का भी इस्तेमाल हुआ है और ठीक इजंट ही के पीछे कामा का इस्तेमाल हुआ है जो अंडरलाइन किया हुआ है। तो इट मीन जब भी आपको क्वेश्चन टैग पूछने हैं तो आपको या यूज़ करने हैं, ज़्यादातर ये स्पीकिंग में बोले जाते हैं, तो उस टाइम पे आपको यहाँ पे कामा लगाना है क्वेश्चन टैग से ठीक पहले। तो कुछ और एग्जांपल्स हैं क्वेश्चन टैग्स की। लेट अस डिस्कस सम मोर एग्जांपल ऑफ क्वेश्चन टैग सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड दिस very clearly. Now look at the second example. She was driving the car, wasn't she? He plays the game, doesn't he? They have helped me, haven't they? Sit down, will you? तो आप देखेंगे ठीक क्वेश्चन टैग से पहले क्वेश्चन मार्क्स का इस्तेमाल हुआ है, कामा का इस्तेमाल हुआ है। क्वेश्चन मार्क्स भी वहाँ पे हैं जब हम क्वेश्चन टैग कर रहे हैं, तो लेकिन उनसे पहले ठीक आप ध्यान दें तो कामा का इस्तेमाल हुआ है। तो आपको ये चीज़ समझनी है अच्छे से। अब हम बात करेंगे अनदर टॉपिक, पंचुएशन मार्क जो है एपोस्ट्रॉफी। ये इसका इस्तेमाल पोजेशन, यूज एन एपोस्ट्रॉफी टू शो दैट समवन ओन समथिंग, इफ़ ओनली वन पर्सन ओन समथिंग तो यूजेस कामा पहले उसके बाद अस।
अगर हम एपोस्ट्रॉफी का यूज़ करते हैं एपोस्ट्रॉफी का, तो इसकी में एक चीज़ ध्यान रखनी है कि कोई चीज़ किसी इंसान के पोजीशन में है या उसकी है, तो उस केस में आप इसको एक छोटा सा ये कामा देख रहे हैं आप लगा हुआ, और उसके साथ एस का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर सिंगल इंसान की वो चीज़ है उस केस में, तो कुछ हम इसमें एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे और उसके बाद ये कंसेप्ट क्लियर करेंगे कि अगर एक से ज़्यादा हों तो तब हमें कैसा करना है इसको। तो लेट्स सी फ्यू मोर एग्जांपल्स। हाँ, तो आप यहाँ पे देखें, राम्स कार इज़ वेरी ओल्ड, स्नेहा's पेन इज़ ब्लैक, राम्स हाउस इज़ वेरी बिग, Neha's book is according to new pattern. तो now look at the Ram's car is very old. It means राम की जो कार है, राम्स की कार means the car of Ram. Sneha's pen means the pen of Sneha. Sham's house means house of Sham. तो Neha's book means book of Neha. तो now look at another rule of apostrophe possession. If more than one person owns something, add apostrophe after s. हमने देखा अगर एक ही हो तो हम पहले लगाते हैं, अगर एक से ज़्यादा हो तो हम s के बाद इसको लगाते हैं। और ये किस तरह से आप इसको पता चलेगा, तो लेट अस लुक एट द सम मोर एग्जांपल सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड दिस। तो नो लुक एट दिस, यहाँ पे हम एक एग्जांपल लिख रहे हैं, स्टूडेंट डैश बस विल नॉट कम टुमारो। तो जब हम बात करें बड़े सारे स्टूडेंट्स की, तो उस केस में आपको एस पहले लेना है और इसको बाद में लेना है। तो स्टूडेंट्स बस विल नॉट कम टुमारो, इट इज़ प्लूरल। एट दिस टाइम आप देखेंगे कि एक स्टूडेंट होता तो हम पहले लेते हैं, बट एक से ज़्यादा हैं तो हम एस को पहले लेके इसको बाद में लेंगे, नॉट एज स्टूडेंट्स। ऐसा कभी नहीं लिखना वरना ये गलत हो जाएगा। इस तरह से सेकंड एग्जांपल भी सेम इसी तरह से है कि बॉयज़। नाउ कम टू अनदर टॉपिक। अब हम बात करेंगे डैश की। रूल फर्स्ट, यूज़ अ डैश टू इंट्रोड्यूस अ कमेंट और एन एक्सप्लेनेशन। हम डैश का इस्तेमाल करेंगे या तो किसी कमेंट को करने के लिए या कोई चीज़ की एक्सप्लेन करने के लिए, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए। तो फॉर एग्जांपल, राम रीच्ड एट द समिट ऑफ माउंट एवरेस्ट। अब देखें ठीक बीच में डैश का इस्तेमाल किया गया। माउंट एवरेस्ट तक सेंटेंस कंप्लीट है, बट हमें इसमें कुछ कमेंट, कुछ एक्सप्लेनेशन एक्स्ट्रा देने के लिए हमने इसकी हाइट बताई हुई है, जो कि हमने डैश से इंट्रोड्यूस की हुई है। तो इस केस ऐसे कोई भी आपको कोई एग्जांपल्स आती है तो आप इस तरह से उसका इस्तेमाल करेंगे। नाउ कम टू अनदर वन, रूल सेकंड, डैश कहाँ पे इस्तेमाल और होती है। तो इफ़ अ सेंटेंस कंटिन्यूस आफ्टर अ कमेंट, मान लो अगर सेंटेंस कंटिन्यू चल रहा है, कमेंट के बाद भी आगे फिर कंटिन्यू है और एक्सप्लेनेशन, तो 2 डैशेज आर नीडेड। तो आप एक से ज़्यादा डैश का इस्तेमाल कर सकते हैं, 2 का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए, योर फादर अ ग्रेट डॉक्टर विजिटेड CM's हाउस टू सी हिम। तो आप इसमें देखें हमने 2 डैश का इस्तेमाल किया गया। हम इसके या कामा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट आप इसमें डैश का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। योर फादर अ ग्रेट डॉक्टर विजिटेड CM's हाउस टू सी हिम। तो हम 2 डैश का इस्तेमाल भी कर सकते हैं ऐसे केस में। तो अब हम बात करते हैं अनदर पंक्चुएशन मार्क्स, कोटेशन मार्क्स, जिनको 2 इन्वर्टेड कामा लिए होते हैं, इनको इन्वर्टेड कामास भी कहते हैं। तो ये डायरेक्ट वर्ड्स होते हैं स्पीकर्स के, या फिर कहीं कभी हमने कोई एक्सट्रैक्ट किसी बुक से लिया हो तो उस टाइम पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। पुट अ कोटेशन मार्क्स फॉर द एक्सट्रैक्ट ऑफ ए बुक आर अ वर्ड्स एक्चुअली स्पोकन। तो फॉर एग्जांपल, ही सेड आई एम गोइंग टुडे। तो ये जो आई एम गोइंग टुडे कोटेशन मार्क्स में रखा है, डायरेक्ट वर्ड्स ऑफ स्पीकर। शी सेड शी रोट ब्यूटीफुल नॉवल येस्टरडे। तो ये जो इन्वर्टेड कामा है, शी रोट ब्यूटीफुल नॉवल, तो ये डायरेक्ट वर्ड्स हैं स्पीकर्स के। Now students, we will discuss another important punctuation marks, and that is underlining. So as far as the word underlining is concerned, so it is like a quotation marks. Some people prefer quotation marks instead of underlining, and some used underlining instead of quotation marks. So some people prefer to underline or make the font italic, title of books, film, plays, rather using quotation marks. So for example, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो कुछ लोग इस तरह से लिख सकते हैं, नेहा वेंट टू वॉच डैश मूवी 10 टाइम्स 3 इडियट्स। तो ये अंडरलाइनिंग का इस्तेमाल किया गया है। तो अंडरलाइनिंग का आप इस्तेमाल कर सकते हैं कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट को हाईलाइट करने के लिए भी। कुछ लोग इसको इंस्टेड ऑफ यूजिंग कोटेशन मार्क्स, तो दे प्रेफर टू यूज़ अंडरलाइनिंग। तो इट इज़ नाउ डेज वेरी प्रेवलेंट वाइल राइटिंग। कंप्यूटर एक्सपर्ट्स यूज़ दिस काइंड ऑफ थिंग्स वाइल ड्राफ्टिंग समथिंग। तो लेट्स डिस्कस सम मोर
examples, but before discussing that you need to understand the another punctuation marks, that is parenthesis. तो parenthesis is also known as bracket. So it is same as we can say bracket. It is used for adding extra information. तो अब हम इस बात करते हैं parenthesis की. तो ये सेम bracket ही है, इनका दूसरा नाम समझ लो bracket है. तो ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं. फॉर एग्जांपल के लिए द फर्स्ट वर्ल्ड वार 1944-1988, अगर हम जो ब्रैकेट इन्फॉर्मेशन ना भी लिखें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. द फर्स्ट वार टुक प्लेस मिलियन लाइव्स, लेकिन हमें अगर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है तो हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं. द ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन 1929 वाज अ डिज़ास्टर. तो आप देखिए जो ब्रैकेट्स के अंदर की इन्फॉर्मेशन है तो ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है. इसी तरह से हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं. नाउ कम टू अनदर पंक्चुएशन मार्क, दैट इज़ कोलन. तो कोलन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. यू नो कोलन, वाइल वी राइट समथिंग तो वी मेक यूज़ ऑफ दिस पर्टिकुलर कोलन. तो अ कोलन इज़ यूज टू इंट्रोड्यूस अ लिस्ट. तो जब हम किसी लिस्ट को इंट्रोड्यूस करने जाते हैं तो उस टाइम कोलन का इस्तेमाल करते हैं. फॉर एग्जाम्पल वी वॉच्ड 4 मूवीज़, 3 इडियट्स, गोलमाल, इंडियंस एंड वेलकम. तो another one is we bought 3 things, car, bike and bus. Now we will discuss another punctuation marks, but before discussing that, come to the second rule of colon. Sometimes a colon can be used to introduce a comment or an explanation in the same way as a dash. जैसे हम डैश का इस्तेमाल करते थे कि कभी कोई कमेंट या एक्सप्लेनेशन ऐड करने के लिए, तो इन द सिमिलर वे वी कैन आल्सो मेक यूज़ ऑफ कोलन. आई लाइक वर्क, इट फैसिनेट्स मी. तो आप देखें किस तरह से हमने कोलन का इस्तेमाल किया है, इस लॉन्ग सेंटेंस को ब्रेक किया है कोलन की मदद से. नाउ वी हैव अनदर पंक्चुएशन मार्क्स, दैट इज़ सेमीकोलन. तो एज फार एज सेमीकोलन इज वर्ड इज़ कंसर्न, तो सेमीकोलन इज़ यूज टू सेपरेट a long main sentence. If we want to break a long main sentence, so we can make use of semicolon. For example, love is like measles, we all have to go through it. So you can see it is a very long sentence and we have break this sentence by using semicolon. The meaning is same, thus there is a continuity of sentence, but we have break the sentence. Every man wants to live long, but no man wants to be the old. Same case with these examples. Now we have another important punctuation marks, hyphen. Some words are always spelled with a hyphen. So you can see in English language there are thousands of words which have a hyphens and they are always spelled with a hyphen. For example, 21, co-education, self-importance, brother-in-law, nowadays. So you can see these words have a hyphens and there are thousands of words, not a single word. So these words are also come with a hyphen. Now come to another rule of hyphen. Rule second, if a word is too long, suppose you are writing something and your word is too long to fit in the last and at the end line, so it can be divided by a hyphen. So you can divide that word with the help of hyphen. Write the hyphen at the end of the first line. So when you write something and it doesn't fit at that time in the last line, so you can divide the word from the hyphen, not the beginning of the next line. तो you need to understand. तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि जब आप कोई सेंटेंस लिख रहे हैं और वो लास्ट लाइन में फिट नहीं हो रहा तो आप उसको डिवाइड कर सकते हैं हाइफन की मदद से. फॉर एग्जांपल, वंस देयर वाज ए किंग, ही हैड अ बिग किंगडम टू रूल. आप देखेंगे इसमें हमने लास्ट किंगडम को डिवाइड किया है हाइफन की मदद से और हमने इसको नेक्स्ट लाइन में आगे आधा वर्ड लिखा हुआ है और ठीक नीचे नॉट एज. ऐसा कभी नहीं लिखना है कि वंस देयर वाज ए किंग ही हैड अ बिग किंगडम. तो आप ऊपर की बजाय नीचे डैश लगाएंगे तो वो इनकरेक्ट हो जाएगा. और एक चीज़ और याद रखनी है कि जब भी आपने किसी वर्ड को डिवाइड करना है तो उसको सिलेबल से डिवाइड करें बराबर. नाउ कम टू अनदर पॉइंट, another punctuation marks, ellipsis. This is our second last. So what is ellipsis? A set of 3 dots indicating an omission. It is omission from a sentence of words needed to complete the sentence. In other words, it means leaving out the words rather than repeating them unnecessarily. तो ellipsis का मतलब है किसी चीज़ को सेंटेंस से ओमिट कर देना, निकाल देना. तो इसका मतलब ये होता है कि इनका जब हम यूज़ करेंगे तो किसी चीज़ को हम दोबारा रिपीट नहीं करना चाहते हैं तो उसकी जगह हम ellipsis लगा सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल के लिए, शी वांट्स टू मीट हर पेरेंट्स, वो अपने माँ बाप से मिलना चाहती है बट बिकॉज आवर इन लॉज
तो आप देखेंगे आगे 3 डॉट हमने इस्तेमाल किए हैं, इलिप्सिस। इसका मतलब है कि जो सेंटेंस का मीनिंग कंटिन्यू में आ रहा है वही आगे कंटिन्यू है, तो यू कैन यूज़ इलिप्सिस इंस्टेड ऑफ रिपीटिंग द सेंटेंस। तो ABCD इट मीन्स अ कंटिन्यूटी, तो ये हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नाउ द लास्ट टॉपिक, स्लैश। तो एज फार एज दिस स्लैश word is concerned, so you are very familiar with this word while writing in mathematics and in other things. It is just like r, तो इट इज़ आल्सो नोन एज ओब्लिक। हम इसको एक और नाम से जानते हैं, ओब्लिक के नाम से, और इट मीन्स आर। इसका मीनिंग होता है आर। जैसे हम बोलते हैं ये करिए या वो वाला, जैसे क्वेश्चन पेपर में आपको आता है आर, तो सेम स्लैश मीन्स आर। तो ये कुछ एक यूजेस हैं कि स्लैश का कहाँ इस्तेमाल किया जाता है। तो सेपरेट पार्ट्स ऑफ ए वेबसाइट, आपने देखा होगा जब आप कोई वेबसाइट ओपन करते हैं तो उसमें स्लैश आती है। इसी तरह से इंडिकेट फ्रैक्शन को यूज़ करने के लिए, टू सेपरेट डे मंथ ईयर को सेपरेट करने के लिए, फ्रॉम सम एब्रीवेशंस को, तो व्हेन हिज आर हर क्लाइंट कम्स तो कॉल ऑन दिस। तो ये इस तरह से स्लैश का इस्तेमाल किया जाता है। नाउ कम टू द एक्सरसाइज, लेट अस ट्राई दिस एग्जाम्पल। ही सेड आई एम गोइंग, तो अब हम इनको पंचुएशन मार्क्स लगाएंगे। तो ही सेड, वन एग्जाम्पल इज ऑलरेडी मेड फॉर यू, तो ही सेड कामा इन्वर्टर कामा आई एम गोइंग। तो इस तरह से आप सभी एग्जाम्पल्स को इनको ट्राई करें घर में, और कोशिश करें कि अपनी बुक्स जब भी आप कोई लेसन पढ़ते हैं, you just read, if you read any lessons in anywhere, so you must go through these kind of punctuation marks to understand fully the text. So there are few more example to solve you, so you can try this example at your home and find out which punctuation marks to use and where, after going through the complete video and understanding each and every topic, so that you can make the correct use of punctuation marks, because punctuation marks matters a lot while writing. Doesn't matter while speaking, but while you write something it matters a lot, and it definitely helps you to get more marks. Now come to the homework. The homework is totally a different way. Read any lesson from your textbook and find at least 10 sentences that contains more than 8 punctuation marks. तो आप कोई भी लेसन अपनी किताब से पढ़ें, हर एक लेसन में गो थ्रू करें। जब भी आप इसको पढ़ें तो कोशिश करें कि आप पंचुएशन मार्क्स ढूंढें, कौन सा पंचुएशन मार्क्स कहाँ लगा हुआ है और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, वो आपको इससे समझ में आ जाए। With this we have completed this beautiful and very important topic, punctuation marks. So I would like to thanks for you for watching this, but you need to remember one thing, that you must read it once again, watch it once again, and go through your textbook and see how the punctuation mark works. With this